ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਕੜ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਮੂਨੀਏ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਸਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਉਨ ਤੇ ਪਲੇਗ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਲੇਗ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੈਜ਼ਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਹੈਜ਼ਾ ਜਦ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਉਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੇਚਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਚੇਚਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੌਰ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੇਤ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਵੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਦਾਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਰੂਥਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਮਰੂਥਲ, ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਖਜੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਹਨੇਰੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਚਲੇਗਾ ਹਨੇਰੀ इधर उधर गिराएगी और ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨੇਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ,
घास फूस के मकान इन्हों भी उड़ा ले जाती है। खैर, पर जब हनेरी चलती है तो सारी जमीन के उत्ते हनेरी नहीं आती, जमीन के किसी एक अध खिते दे आती है। जब तूफान चलता है तो वह तूफान सारी जमीन ते नहीं आता, जमीन के किसी एक अध खिते च आंदा है। जब सागर दे उछाल आता है, तुफानी आती है, तूफान आता है, तो सागर के सारे खिते दे तूफान नहीं आता, किसी एक अध खिते च। हू बहूर विकारां दा तूफान जब मनुख के शरीर में उठता है ना, तो सारे इंद्रियां च नहीं प्रगट होता। कदी अखां च प्रगट होएगा, कदी कन्नां दे च, कदी जबान दे च, कदी खलड़ी दे च, कदी नासका दे च। एक रस प्रधान होएगा। जिहड़ा एक रस प्रधान होवे ना, अखां दा रस प्रधान है, तो सारा दिन अखां दे चस्के लैंदा पिया, समझ लो हनेरी अखां दे च है। जबान के चस्कियां दे च लीन है और सारा दिन लीन है, तो हुण तूफान जबान दे उत्ते। खलड़ी के रोग वासना दे च फसे होया है, कामना दे च फसे होया है, तो हुण हनेरी खलड़ी ते है। सारा दिन झूठ निंदा ते बिखे नाद सुनन दे च ही रस है, हुण तूफान कन्ना दे च है। तूफान आउंदा है एकदम सारे इंद्रियां ते नहीं आउंदा। एक रस एक बंदे च प्रधान होंदा है, और होंदा कुछ समय ਲਈ है, उतों हनेरी लंघ जाती है, हनेरी किसी दूसरे इंद्रिय ते। तूफान आना है, आसार दिखाई दे रहे हैं, बचाव कर लो। यह जिहड़ा सतसंग है ना, जिहदे तुसीं कथा कीर्तन सुन ले हो, बस इहदे च ज्ञात एक बोध मिलता है कि यह बंदे तेरे शरीर के किस हिस्से तूफान आन लगा है, सुचेत हो जा, बचाव कर ले। कथा कीर्तन तो बस ये संकेत मिलते हैं। हुण तूफान की लपेट दे है, तू किहड़े तूफान की लपेट है, और इत्थों ये तूफान लंघ गया तो फिर किसी दूसरे से प्रगट होवेगा। मैं फिर अर्ज करा, आप जितने सारे बैठे हैं, हर बंदे का रस वख वख होवेगा। कोई कन्ना के रस च फसे होया, कोई अखां के रस च, कोई जबान के रस च, और बोल चाल तो भी पता चल जाएगा ये बंदा किहड़े रस दे फसिया पिया। मैनू गल भुलदी नहीं, दिल्ली तो इलाहाबाद तक मैं सफ़र कर रहा सी, आसाम मेल दे एक सज्जन वो भी कोल बैठे सन, कट्ठे सफ़र हो रहा से। जो गाजियाबाद तो उसने खाने पीने की गल शुरू की ना, तो इलाहाबाद तक करता ही गया, ऐ खाना इंज आउंदा है, इंज बनाईदा, इंज बनाईदा। तो मैनू आखिर कहना ही पिया, मैं मित्रा तू किधरे हलवाई तो नहीं, या पिछले जन्म का तो नहीं, ज्यों गाजियाबाद तो तू खाने पीने की गल शुरू की है, तो इलाहाबाद तक जब भी कभी कोई गल बात का माहौल, गुफ्तगू का माहौल चले, गल खाने पीने की, होर कोई गल नहीं। उत्थों मैं अंदाजा ला लिया तूफान दे बरपा है, पर इस वक्त तूफान इसकी जबान से छाया है। हर स्टेशन ते गड्डी रुके तो कुछ चाहिए खाना, उतरे कुछ ना कुछ चाहिए, भावें भुख है भावें नहीं, पर कुछ चाहिए। तूफान तूफान की लपेट दे जबान है, तो जिमें तूफान बेकाबू होता है, जिहड़ा रस तूफान के रूप में जिस इंद्रिय च होगा वो काबू च नहीं होगी। इन्नी मैरज करते हैं। अगर ये तूफान अखां ते होया तो अखां गुरुद्वारे च भी बेकाबू होणगियां, इन्नी मैरज करते हैं। तुसीं सतसंग दे च बैठे हो, किस तरह काबू करोगे? तूफान है, ये अखां गलत वेखणगियां। अगर ये तूफान कन्ना ते है तो कन इत्थे भी गलत सुनणगे, इत्थे महफिल सजा के सारा दिन निंदा ते झूठ सुनणगे। अगर तूफान खलड़ी ते बरपा है तो गुस्ताखी मां भावें हाथ में सुंदर गुटका तो जपजी साहब क्यों ना पे पढ़ता होवे, जब खलड़ी उत्ते तूफान है तो इनू राम नहीं चेते आवेगा, काम चेते आवेगा। तूफान तूफान ते बेकाबू होंदा है। ये तूफान वख वख इंद्रियां दे उत्ते इस तरह प्रगट होंदा है जिवें जमीन दे उत्ते किसे किसे खिते दे हनेरी आउंदी है, हर पासे नहीं है। जिवें सागर दे किसे किसे खिते च उछाल आउंदा है,
साडे शरीर के किसे किसे इंद्रे च किसे किसे समय उछाल आउंदा है। और साध संगत दे च बस इस गल का बोध लेना है कि किहड़े इंद्रे की भूमि के उत्ते इस वक्त हनेरी चल रही है, इन्नी मैरिज कर रहे। जीवन सागर के किहड़े हिस्से च इस वक्त तूफान है, ये देखना है। किहड़े पासे उछाल है, किस पासे तुगयानी है, बोध मिले। तो फिर यह भी बोध मिले कि किहड़े खत्ते दे तूफान आने वाला है, ताकि सावधान होइए, सुचेत होइए। सतसंग किधरे बच्चों का खेल ना समझ लेना, कथा कीर्तन किधरे खिडौणियां की खेड ना समझ लेना। भगत कबीर कहते ये गल वखरी है कि लोगों ने खिडौणियां की खेड समझिए। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने रब नूं खिडौना ही समझे, बिल्कुल खिडौना, हालांकि खिडौना नहीं है। इतनी मैरिज कर दें। साधना करन जद बैठोगे, जप करन जद बैठोगे, तो इंद्रियां दे जिस हिस्से च ये तूफान है, जप नहीं करन देगा, ये जपजी नहीं पढ़न देगा, ये कीर्तन नहीं सुनन देगा, शब्द सुरत की लीनता ये नहीं हो सकेगी। बस इस तूफान तो बचाव करना है। और ये तूफान आवेगा, रब का नियम है, परमात्मा का नियम है। जमीन ते तूफान आउंदे ने, सागर दे तूफान आउंदे ने, ते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मंड दे चाहुंदा उस पिंड दे चाहुंदा है। जे परमात्मा इस ब्रह्मंड दे च है तो परमात्मा इस पिंड दे च है। जे तूफान इस ब्रह्मंड दे च ने तो तूफान इस पिंड दे च ने। इतनी मैरिज कर लें, ऐसा है। दूसरी अर्ज हो कि जिस तरह इंद्रियां दे उत्ते वख-वख तूफान आउंदे ने, मन दे विच भी किसी वक्त एक रोग की प्रधानता आउंदी है। और वो प्रधानता बहुगिणती दे चाहुंदी है। बहुत सारे मनुख उसकी लपेट दे चाहुंदे ने। छूत की बीमारी है, बिल्कुल कहंदे ने इहदे कोल ना बैठो, कोल छूत की बीमारी है, ये तपे दिख और इस तरह के होर चेचक इत्यादि बहुत सारे मर्ज, ये बीमारियां एक तो दूजे नूं लगदियां, दूजे तो तीजे नूं लगदियां। यकीन जानो कुछ मानसिक रोग भी ऐसे ने, छूत की बीमारी है, एक तो दूजे नूं लगदियां ने, दूजे तो तीजे नूं लगदियां ने, तीजे तो चौथे नूं लगदियां ने। ते इस वक्त ये जिहड़ी बहुती मनुखता है, किहड़ी बीमारी की लपेट दे च है? अहंकार। इहदी लपेट दे च बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारा जगत है। इंज नहीं कहना चाहिए कि सारे ही बहुगिणती दे च, बहुते इसे दी लपेट दे च। कुछ गुरमुखां नूं छड्ड के, कुछ भगतां नूं छड्ड के, कुछ अभ्यासियों नूं छड्ड के, ते अभ्यासी भी वो जिन्हां दी साधना तोड़ने पई है। जिहड़े अभ्यास करते पे ने उन्हां नूं अभ्यास करन दा अहंकार हो जांदा है। जो सेवा करते पे ने उन्हां नूं सेवा करन दा अहंकार हो जांदा है। जो कीर्तन करते हैं उन्हां नूं कीर्तन करन दा अहंकार हो जाता है। जो कथा करते हैं उन्हां नूं कथा करन दा अहंकार हो जाता है। जो गुरुद्वारियां दी संभाल करते हैं उन्हां नूं सेवा संभाल दा अहंकार हो जाता है। गरज के ये अहंकार, ये हौ में गुरु अमरदास जी महाराज के कथन अनुसार इस वक्त जगत रोग है। जगत जिवें जगत गुरु आउंदे ना, जगत रोग, जगत बीमारी, सारे जगत की बीमारी, सारी दुनिया जिसकी लपेट च होवे। कुछ एक नूं छड्ड के जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। अहंग भाव, हौमे। हौमे का मतलब है मैं हाँ और मैं होवां। तू नहीं है, तू कौन है? मैं हाँ मैं होवां। अजोके दौर की बहुत वड्डी बीमारी। पर यह ना समझ लेना बाकी जड़ियां चार बीमारियां ने वो नहीं ने, वो दबियां हुई ने, वो उकसाहट नाल पैदा होंदियां ने, वक्ती पैदा हुई चलियां गई। जिवें जुकाम लगे चला गया, जिवें मत्था दुखण आया सवेरे घंटे बाद ठीक हो गया। हुण ठीक है, एक अद गोली लई ते मत्थे की पीड़ ते चली गई, पर एक अद गोली नाल शुगर थोड़ी जाती है, कैंसर थोड़ी जाता है। ये जाता है तपे दिख थोड़ी जाता है, ये तो लंबा इलाज। हौमे एक गोली नाल जान वाली नहीं, एक पुड़ी नाल जान वाली नहीं,
ये लंबी बीमारी है। हौ में दीर्घ रोग है दारू भी। ये तो दीर्घ रोग है, ये तो लंबा रोग है, ये लंबी बीमारी है। एक गोली खाद्या नहीं, कोई मत्थे की पीड़ा थोड़ी है, गोली खाधी तो दूर हो गई, इस तरह की गल नहीं है। कई ऐसे ने जो लंबी बीमारी को छेती खत्म करना चाहते हैं, भाई नहीं एक गोली खाइए तो ठीक हो जाए, और फिर संतां महानतां दे डेरियां और इस तरह के डिंबी गुरुओं के चक्कर च पैंदे ने, भी ऐसा मंत्र दो शाम तक ही गल बन जाए। बहुते रोगी होवन ते नकली दवाइयां बहुत चल पैंदियां, और नकली दवाइयां दे उत्ते लोगों का विश्वास बहुत हो जाता है। नियम हकीम उन्हां दी बन आउंदी है, खिमा करनी धार्मिक दुनिया दे इस तरह के नियम हकीम थानू कदम कदम ते मिलणगे। मंत्र तंत्र कल ही मैनू परचे वंड रहा सी ते परिक्रमा ची ते उचेचा मैनू आके दिते उसने, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ पंक्ति सी भी जिहड़ा निराकार का जाप करे, अवतार का जाप करे, बस उन्होंने परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिन्नियां अवतार संबंधी जिन्नियां निराकार संबंधी पंक्तियां सन ना, वो इकट्ठियां कीतियां गई ते संत दास थल्ले कोई लिखिया होया संत दास ते वंड रहे, ये जपो गुरबाणी इसदा कहती है। तो उन्होंने मूर्खों को कौन समझाए, गुरबाणी तो यह भी कहती है, रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। गुरबाणी तो यह भी कहती, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब अल्लाह दे कर बंदगी। गुरबाणी तो यह भी कहती, अल्लाह की बंदगी कर। राम का नाम जप, गोपाल का नाम जप, गोरख सोए जिन गोए उठा ली, करते बाहर न लागे, वो तो गोरख है, गोरख गोरख जप। इत्थे ते अनेका नाम ने, पर हुण एक नाम की इस ढंग की चोण करके गुरबाणी चों ते अपना एक संप्रदा, अपना एक मत चलाना, आले दुआले लोगों को इकट्ठा कर लेना। ते खिमा करनी धार्मिक तौर पर बंदा तो कोई बहुत सियाणा है नहीं, तो इस तरह की लंबी चौड़ी भीड़ दे इस तरह के नियम हकीम अपने इश्तिहार वंड के नकलियां दवाइयां वेच छड़ दें, चल जाती है। तो इश्तिहारबाजी गुस्ताखी माफ ठीक है, युग इश्तिहारबाजी का, पर कभी फुल ने यह नहीं आख्या कि मेरे च खूबसूरती है, मेरे विच महक है। उन्होंने इश्तिहार कढ़ने पैन किसी फुल नूं। सूरज नूं इश्तिहारबाजी करनी पई है कि मेरे च रोशनी है, मेरे च प्रकाश है। चंद्रमा नूं कोई इश्तिहार लाने पे ने कि मेरे च शीतलता है, मेरे च चाननी है, मेरे च ठंडक है। हिमालय पर्वत कोई इश्तिहार पिया वंडदा है भाई मेरे च ठंड है, मेरे च शीतलता है। तेरे च कोई शीतलता है, तेरे च कोई गुणा की महक है, तेरे अंदर कोई रब्बी चानना है, तो चानना ही जो है इश्तिहार है। तेनों इश्तिहार कढ़ाने की लोड़ ही नहीं है, वो चानना ही इश्तिहार है, वो महक ही इश्तिहार है। फिर मैं अर्ज करा, इस तरह के संत महंत डिंबी जो इस तरह के मंत्रों को लैके ते परचे वंडन, समझ लेना नियम हकीम ने। ते नियम हकीम की लपेट कुछ बंदे जरूर आएंगे। नकली दवाइयां ले लेंगे लोग, रेल के डब्बे भी लोग दवाइयां वेचते पे, फुटपाथ के उत्ते भी लोग दवाइयां वेचते पे, बाजार के बैठे बैठे भी लोग नकली दवाइयां वेचते पे। नियम हकीम आप रोगी ने, नियम हकीम। अखां का सुरमा एक लैके मेरे को सज्जन आया, कहने लगे ज्ञानी जी ये जोत वधदी है, तो मैं कह तू तो चश्मा लाया अखां ते, तेरी जोत क्यों नहीं वधी? सुरमा लेके आया मेरे को। जिस दिन तेरा चश्मा नहीं होएगा तेरी सुरमे की करामात मैं तां समझांगा। इन्ना मोटा तू चश्मा लाया होया तो मैनू लिया के दिंदा पिया सुरमा। तो मतलब इन्ना सी तुसी लाओ, आले दुआले जेडे बैठे ने भी थानू देखन, होर भी खरीदन, सिलसिला इस तरीके नाल चले। गल जिहड़ी सी इतनी सी, मैं कहने पुरखा तेरा चश्मा लगे होया तो हो सकता है सुरमा मैं लाया तो मैनू भी मोटा चश्मा ही लाना पैना, और कुछ नहीं। मैं नहीं लाना है चश्मा, मैं सुरमा नहीं लेना। इस तरह के नियम हकीम बहुत थां थां ते, पर आखिर वो खिमा करने सुरमा बिकदा है उसका। ऐसी गल नहीं, लोग लेंदे ने, अपनी अखां फोड़ते हैं, अखां ते चश्मे लवांदे ने सुरमा पा पा के। जिन्हां दी ठीक ठाक अखां ने वो भी खराब करांदे ने। रोगां दा अपना अपना दौर आउंदा है, ते कोई एक अद रोग विशेष रूप दे मन दे छाया हुंदा है, बाकी दबे होए हुंदे ने। अजोके समय जिहड़ा मूल रूप दे रोग छाया होया है वो है अहंकार। हाँ मैं हाँ,
हौमे च ग्रसिया होया मनुख बराबरी नहीं देगा, क्योंकि बराबरी होए तो हौमे टिक नहीं सकती, क्योंकि मेरे जैसा कोई होर भी है। तो जब मेरे जैसा कुछ होर है तो मेरी कमजोरी हो गई, मेरे मैं दे चोट आ गई। तो मेरे जैसा कोई होर तीजा भी है, होर कोई चौथा भी है, फिर अहंकार नहीं टिक सकता। निरा मैं कवि थोड़ी हाँ, होर भी कवि एक, उस तो इलावा एक होर भी कवि है, होर भी कवि है। अहंकार नूं टिकण लई मौका नहीं मिलता। निरा मैं ही वड्डा व्यापारी नहीं, एक होर भी है, उस सामने एक होर भी है, उस तो एक होर भी है। ते वड्डा हौमे दे तल दे ते जिहड़ा जीण वाला है ना, उन्होंने वड्डा व्यापारी नहीं चंगा लगेगा, वड्डा कवि नहीं चंगा लगेगा, वड्डा कलाकार नहीं चंगे लगेगा। क्यों? वड्डे दे होंदे विचारो आप छोटा हो जाता है। ते छोटापन अखरदा है, छोटापन चोट करता है। अहंग दे ग्रसिया होया, हौमे दे ग्रसिया होया, तो फिर हुण की करदा है? इस तरह का बंदा दूजियां नूं छुटियाओ, अपने आप नूं वड्डा करो, बस इन्नी गल है, छुटियाओ। ये देश, खास करके साडा देश, जितने अहंकार दे लंघ रहा है, गुरबाणी जो कुछ कह रही है, इतना अहंग भाव मैं किसी होर देश दे नहीं देखा। इतनी मैं अर्ज कर दी, बहुत बड़ा अहंकार, ते अहंकार जिंदगी के हर पहलू दे प्रगट हो रहा है, थां थां दे प्रगट हो रहा है। सदियां की गुलामी ने संपन्न बंदियां नूं बहुत बड़ा अहंकारी बना दिता। राजस्थान दास रहिंदा, छोटे मोटे रजवाड़े धनवान, उन्होंने आखते हैं अन्नदाता। अगले बेचारे मजदूर गल करनगे ना, अन्नदाता, हुक्म करो तुसी अन्नदाता, साडे अन्नदाता। जने खणे नूं अन्नदाता कही जांदे। हुण जिहड़ा जने खणे नूं अन्नदाता कही जांदा, वो अन्नदाते नूं समझ सकेगा, जुड़ सकेगा कि अन्नदाता कौन है? दद्दा दाता एक है, दूसरे ना इनको जुड़ सकेगा। जिहड़ा अन्नदाता थां थां ते कही जांदा है, हर एक नूं जो है आखी जांदा है, दब गया, मर गया, मिट गया। और अहंकारियों ने कईयां नूं मिटा दिता। मैं देखे है अहंकारी प्रधाना ने गुरुद्वारियां दे बेशतर ग्रंथियां नूं इतना नीवा कर छड़िया है, इतना निमाणा कर छड़िया है, चपड़ासी तो भी थल्ले चले गए। ते हुण ये प्रधान जब गुरुद्वारे जान, पहले सत श्री अकाल ग्रंथी बुलावे, असी प्रधान है ये बुलावे, तो महाराज दा वजीर थोड़ी हो गए, तो चपड़ासी तो भी थल्ले लै गए। उसनूं तुसीं ओहदी वैल्यू की रहन दित्ती, तुसीं ओहदी हस्ती की रहन दित्ती। इस वास्ते जब मैं समुचे हिंदुस्तान का ते बाहर देशों का भ्रमण करदा, ते जिहड़े मैनूं ग्रंथी मिलते हैं, ग्रंथी पढ़ने के लायक नहीं ने, पर कसूर सिर्फ उन्हां ग्रंथियां दा नहीं, उहदे 50% कसूर मैं प्रधानां दा वेखदा। गुरुद्वारियां दे दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ, मिटा ही दो। किधरे अखंड पाठ भी रखना है, किधरे कोई धार्मिक सम्मेलन भी होना है, तो राय प्रधान साहब देंगे, ग्रंथी साहब नहीं देंगे। तो इस ढंग दे नाल समुचे देश दे धार्मिक मसलियां दे भी प्रधान छा गए, जिन्होंने शायद बथेरियां ते 10 गुरुआं दे नाम भी नहीं आउंदे, पंज बाणियां दे पाठ का भी नहीं पता। और मैं सच हकीकत दसा, एक कहे मैनू भी पंज बाणियां केड़ियां ने, ते 30 साल का प्रधान चले आ रहे सी गुरुद्वारे का, पंज बाणियां का पता नहीं केड़ियां ने। ये पंज बाणियां केड़ियां ने ज्ञानी जी दसो। मैं कहा चलो शुक्र है, तू एक कमजोरी प्रगट तो कर दी, कई तो कमजोरी प्रगट भी नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं कि जो इस तरह के बंदे गुरुद्वारियां के मुखी होणगे, धर्म प्रचार किस तरह होएगा? ते ग्रंथी रागी खिमा करनी चपड़ासी तो थले चले जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे। ये ढांचा सानू बदलने की लोड़ है, ये सही करने की लोड़ है, ये सुधारन की लोड़ है। असी सियासत का एक विंग अलग बना लीए, ते धार्मिक काम करने वालियां नू कुछ अलग तकवीयत दे दी है। राजनीतिक बंदे उन्होंने मदद करन, धार्मिक उन्होंने मदद करन, लेकिन होवन वक्त ऐसा ना होवे कि धार्मिक बंदा धर्म का मुखी बन के भी खिमा करनी असैम्बली हाल के बूहे खड़कांदा फिरे ते पार्लीमेंट के दरवाजे खड़कांदा फिरे। ये नहीं गल शोभा देंदी। सारी शक्ति तो उस पासे वंडी जाएगी, धर्म प्रचार कौन करेगा? तो किवें करोगे? सारा समा उस पासे खर्च हो जाएगा, सारी शक्ति उस पासे खर्च हो जाएगी। तो ग्रंथी उन्होंने जो है प्रधानों की परिक्रमा ही करते हैं, समा व्यतीत करते हैं, तो खिमा करनी गुरु की परिक्रमा करने का तो इन्होंने कोल वक्त ही नहीं रहेगा, की परिक्रमा करेंगे? ये सारिया कमजोरियां जो थां थां ते मैनू दिखाई दित्तियां ने, मिशनरी होने के नाते अपना फर्ज अदा करते हुए थानू सुना दित्तियां ने। मनना, इस ढंग का सही निज़ाम बनाना, ये तुहाडा काम, कहना, एहसास करा देना,
ये दास का कम, मैं अपना फर्ज निभाया, तुसी अपना फर्ज निभाते जाओ। तां मैं समझदा दोए मिल कारज उपजे, राम नाम संजोग। तो खैर मैं गल मुकावा ना, अहंग भाव हौमे विच ग्रसिया होया मनुख दूजे नूं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ते ये देश सदियां तो हौमे दा ही रोगी है। इत्थों दा ब्राह्मण वो कहता बाकी सारे मैथों थले ने, मेरी बराबरी का कोई भी नहीं, न खतरी न शूदर न वैश, सब मैथों थले। उन्हें पहले ढंडोरा दे दिता, मैं वड्डा। अहंकार इतना अस्थूल हो गया, अहंकार इतना मोटा हो गया, मैं वड्डा, बाकी सब मेरे थले, बाकी सब मेरे कदमां विच। जद जद किसी ने ब्राह्मण की बराबरी का दावा किया तो पता या तो उसनों मिटाया, खत्म किया, तो जे मिटा नहीं सके तो पता की आख्या कि यह भी पिछले जन्म का ब्राह्मण से, या यदि मां ब्राह्मणी है या यदा प्यो ब्राह्मण है। जैसे कबीर नाल गल जोड़ दी गई। हुण कबीर कौन है? मुसलमान है, पर सारे हिंदुस्तान गल प्रचलित है नहीं कि ब्राह्मणी का लड़का है, कुंवारी ब्राह्मणी का लड़का है। क्षमा करनी, बिल्कुल झूठी गाथा बनाई गई है, सच्चाई नाल इसका दूर का भी कोई तल्लुक नहीं। कबीर कौन है? ये रविदास तो पूछिए, जिहड़ा रविदास कबीर के वक्त मौजूद सी। ये भगत समकाली ने, इको टाइम दे रहे हैं। नामदेव, त्रिलोचन, सदना, सैन, कबीर, रविदास, ये सारे इको ही वक्त ने। और ये सबूत थानों मिलणगे भगतां दी बाणी च। एक भगत दूसरे का जिक्र करता, दूसरा पहले का जिक्र करता, एक दूजे का जिक्र करते हैं। एक निक्का जिहा उदाहरण मैं दे दियां, गल स्पष्ट हो जाएगी। कबीर जी का श्लोक है, श्लोक जिहड़े तुसीं पढ़दे हो, उन्हां श्लोकां विच कबीर कहंदे ने, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये श्लोक कबीर दा है, रविदास दा नहीं है। श्लोक कबीर दा है। ते कबीर कहते ने जो रविदास है ना, सच कह रहा है कि हरि जैसे हीरे नूं छड़ के जिहड़ा किसी होर आसा दे उत्ते अपनी जिंदगी बतीत करता है, वो दोजकां च जाणगे, दुखी होणगे। उन्होंने आसा राम दी नहीं रखी, जिन्होंने दुखी होणगे। हुण इस तरह की पुकार की रविदास ने, ते रविदास की पुकार नूं कलम बंद किया, शब्द बंद किया कबीर ने अपने शब्दों विच। श्लोक कबीर का है, ख्याल रविदास देना। इसी तरीके नाल रविदास कहते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन करे, कह रविदास सुनोरे संतो हर जीते सबे सरे। हुण ये अपने शब्द विच कबीर का जिक्र करता है, नामदेव कबीर त्रिलोचन। कबीर अपने शब्द विच रविदास का जिक्र करता है। दोहां दे समकाली होने का सबूत कि मैं भी अर्ज करा, सारे भगत एक दूजे का नाम लेंदे ने। नामा माया मोहा कहे त्रिलोचन मीत, काए छिपो छाए लो, राम ना लावो छी।